वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स आरएम एजुकेशन सेंटर रे मु समस्त स्टूडेंट को स्वागत जनाऊँगी। आज प्रोबेबल एमसीक्यू सीरीज रे रेगुलर बेसिस रे काउंसिल एग्जाम 2022 पाई चैप्टर वाइज एमसीक्यू पोस्ट करा जिवो। सो डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम चलो आरंभ करिवा आज रो क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज when a glass rod is rubbed with silk, it option 1 gains electron from silk, option B gives electrons to silk, option C gains protons from silk, option D gives protons to silk. Right answer of question 1 is option B gives electrons to silk, because on rubbing a glass rod with silk, excess electrons are transferred from glass to silk, so glass rod becomes positive and silk becomes negative. So बुझीगला जेते बेले रब हबो ग्लास आउ सिल्क सेते बेले ग्लास हे जिवो पॉजिटिव एंड सिल्क हे जिवो नेगेटिवली चार्ज्ड। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हबो ग्लास टू सिल्क। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हला क्वेश्चन नंबर 2। इन जनरल मेटालिक रोप्स आर सस्पेंडेड ऑन द कैरियर्स टेकिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल, द रीजन इज कौन कहला जे इनफ्लेमेबल मटेरियल नहीं जाउची एभली किछि कैरियर्स माने ट्रक बा किछि अलगा गाड़ी जाधरे कौन हुए ना गोटे मेटालिक रॉप ताधरे सस्पेंडेड होता है जोटा कि ना ग्राउंड सहित टच होता है। कौन पाई कि ऑप्शन ए टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कैरियर, ऑप्शन बी टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कैरियर nearer to the earth, option C to keep the body to the carrier in contact with the earth, option D none of these. Right answer of question 2 is option C to keep the body of the carrier in contact with the earth. जदि गोटे मेटालिक रोप को आमे ट्रक सहित टच करिकी ग्राउंड रे ताकू छाड़ी दबा, दैट मीन्स जेतेबेले ट्रकटा जीवो ता सहित लागि थिबा सेही मेटालिक रोपटा ग्राउंड सहित टच हे जाउथबो। या धरे कोन हबो ना जेतेबेले जर्किन हबो ता भितर जो इनफ्लेमेबल मटेरियलटा अछि माने ऑयलटा अछि सी फ्रिक्शन पाई कि जो हीट प्रोड्यूस करिवो सेही हीटटा से रोप देगी ग्राउंड को पळे जीवो, जोटा कि ना ऑयल को बर्निंग ठारू सेव करिवो। Option C is the right answer for providing a path to the charge induced on the surface of the carriers. Next question हला question number 3. Two charges Q1 and Q2 are placed in vacuum at a distance d and the force acting between them is F. If a medium of dielectric constant 4 is introduced around them, the force now will be. We know that force F is equals to one by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. Now if we placed two charges inside a medium, then this epsilon naught replaced by k epsilon naught. Now k is the dielectric constant which is 4, so new force F dash it will be F divided by 4. So option D F divided by 4 is the right answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 व्हेन 10 to the power 14 electrons are removed from a neutral metal sphere the charge on the sphere becomes ऑप्शन देला 4 माइक्रोकुलम, ऑप्शन बी 2 माइक्रोकुलम, ऑप्शन सी 8 माइक्रोकुलम, ऑप्शन डी 16 माइक्रोकुलम। এই क्वेश्चन रे को फॉर्मूला लागिवो ना आमे जानिचु Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दे दीज दैट मीन्स N इज गिवन ओके। E द वैल्यू ऑफ द E आमे जानिचु केते 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम वैल्यू ऑफ द E and what we have to find out, we have to find out charge on the sphere। sphere रे चार्ज केते हबो। सो सिंपल आमे Q इक्वल्स टू एनी फॉर्मूला पकेबा N जगह रे 10 to the power 14 ई जगह रे 1.6 इंटू 10 to the power minus 19। सो Q वैल्यूटा बाहरी जीवो। सो इटा बाहरिबो केते 16 माइक्रोकुलम ओके। Q इक्वल्स टू एनी दिस इज 10 to the power 14 this is 10 to the power 14 into 1.6 into 10 to the power minus 19 this is 10 to the power minus 19 or Q is equals to this is Q 1.6 into 10 to the power minus 5 coulomb that means 16 microcoulomb okay। as electron as removed so charge will be positive जेहेतु एठी इलेक्ट्रॉनटा रिमूव हेछि सेथि पई चार्जटा कोन हबो पॉजिटिव हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन हला क्वेश्चन नंबर 5 टू सिमिलर स्फीयर्स हैविंग प्लस q and minus q charges are kept at a certain distance F force act between the two if at the middle of two spheres another similar sphere having plus q charge is kept then it experiences a force in magnitude and direction as option A dala 0 having no direction, option B dala 8F towards plus q charge, option C dala 8F towards minus q charge और option D dala 4F towards plus q charge। चलो देखिबा यार सॉल्यूशन। सो इनिशियली आमे धरिबा A and C ए दुटा पॉइंट रे प्लस Q and माइनस Q चार्ज अछि यार इन बिटवीन पॉइंट B रे आउ गोटे चार्ज जदि आमे प्लस Q को आनिबा ताहाले फोर्स केते हबो फोर्स चेंज केते हबो एवं A एवं C या भितर डिस्टेंस टा होची R। सो फोर्स केते हबो ना K Q into Q by R square that means K Q square divided by R square। Now when a similar sphere B having charge plus Q given in the question kept at the midpoint of the line joining A and C ताले net force on the B ऊपर net force केते हबो ना B ऊपर net force हबो F net is equals to FA plus FC। ताले देखिबा FA कोन FA हला A पॉइंट रे चार्ज एंड B पॉइंट रे चार्ज ता भितरे फोर्स एंड FC हला ए मिडिल रे जो प्लस Q चार्ज अछि ता ऊपरे ए प्लस Q चार्ज एमितिया डायरेक्शन रे फोर्स अप्लाई करिवो दिस इज द रिपल्सन एंड C पॉइंट रे अछि नेगेटिव चार्ज। सो ए नेगेटिव चार्ज कोन करिवो ए पॉजिटिव चार्ज को ये ताड़ को अट्रैक्शन करिवो बिकॉज ये होची नेगेटिव चार्ज। सो रिजल्टेंट फोर्स ए डायरेक्शन रहिवो सो रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्शन कोन हला दिस डायरेक्शन इज द रिजल्टेंट फोर्स और डायरेक्शन। सो FA प्लस FC एटा कोन होइबो K Q स्क्वायर बाय R by 2 रो होल स्क्वायर K Q स्क्वायर बाय R by 2 रो होल स्क्वायर। सो 8 K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर जेहेतु K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर ये होची F सो एटा हिजबो 8F। सो आंसर विल बी 8F। सो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 a charge Q is divided into two parts of small q and capital Q minus Q
if the Coulomb repulsion between them when they are separated is to be maximum, the ratio of capital Q by small q should be 2:1, 1:2, 4:1, 1:4. देख सॉल्यूशन कही चार्ज क्यूटा डिवाइड होती दीटा पार्ट रे गोटे हूँ क्यू चार्ज आउ गोटे हूँ क्यू माइनस क्यू सो यही दीटा है चार्ज गोटे हूँ स्मॉल क्यू चार्ज आउ गोटे है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू ऑलराइट एबे कौन करिया देख फोर्स बाहर करिया एई दीटा चार्ज भितर फोर्स बाहर करिया आउ फोर्स मैक्सिमम हबो केतेबेले ना जेतेबेले dq df by dq is equals to 0 तो पहले देखो f is equals to k q1 q2 that means गोटे होची q आउ गोटे चार्ज होची q minus q so q1 q2 by r square so एटा होची फोर्स नाउ मैक्सिमम हबो फोर्स केतेबेले ना जेतेबेले df by dq is equals to 0 हबो ऑलराइट पहले देखो एटा को आमे लिखि परिबा k q कैपिटल Q r स्क्वायर माइनस k q स्क्वायर r स्क्वायर नाउ df by dq 0 एटा implies that df by dq माने डेरिवेटिव करिवा ताले यार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल q यार डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल q ताले एटा कोन हेजिबो ना k q r स्क्वायर माइनस एटा हेजिबो केते 2k q r square is equals to 0 all right now k कटि जिवो r square कटि जिवो रहिबो किए ना q minus 2q is equals to 0 यार अर्थ हला q by small q is equals to 2 by 1 so 2:1 is the right answer. So option A 2:1 is the right answer. Next question देखो 4 equal charges small q are placed at the 4 corners of A B C D of a square of length A ताले एटा गोटे देइछि स्क्वायर जार लेंथ देइछि A माने लेंथ ऑफ ईच आर्म देइछि A ईच कॉर्नर रे प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड हेची ओके द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज बी बी पॉइंट रे जो चार्ज अछि एही चार्ज ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स और मैग्नीट्यूड कोन हबो पहले एही क्वेश्चन को केमती कोन करिया देखो एही चार्ज या ऊपर केमती का फोर्स लगेबो रिपल्सिव एही चार्ज या ऊपर केमती का फोर्स लगेबो रिपल्सिव एवं एही डायरेक्शन हबो एवं एही चार्ज या ऊपर केमती का फोर्स लगेबो एंतिया डायरेक्शन रे फोर्स लगेबो ए पिले देखो एई फोर्स प्लस एटा जदि हमें कहबा एटा को जदि हमें कहबा F1 एटा जदि हमें कहबा F2 F1 F2 रिजल्टेंट फोर्स ये भी एई डायरेक्शन रे हबो हैला ये को डायरेक्शन हबो ना ये भी एई डायरेक्शन हबो सो एई दीटा फोर्स मींस F1 F2 रिजल्टेंट फोर्स एवं एई जे फोर्सटा एई दीटा को जदि हमें मिसे दबा ताले हमकु मिलि जिवो टोटल फोर्स एवं डायरेक्शन कोन हबो डायरेक्शनटा होची F1 एवं F2 सहित 45 डिग्री एंगल सो दिस इज द 45 डिग्री दिस इज 45 डिग्री ओके सो पिले देखो एडी सॉल्यूशन टा को मु कर देछि सो इटी कोन हबो ना रिजल्टेंट फोर्स होची FAC कोन पई लिखिछि एटा को मु FA लिखिछि एटा को FC लिखिछि दैट मींस एई फोर्सटा होची B ऊपरे A पॉइंट रो जो चार्ज होची तार फोर्स होची रिपल्सिव एवं डायरेक्शन होची FA हेची एंड C पॉइंट रे जो चार्ज होची सेही चार्ज B पॉइंट रे जो चार्ज होची तापरे केमती का फोर्स लगेबो FC एवं डायरेक्शन केमती का सीधा रिपल्सिव ओके तो FC FA या रिजल्टेंट कोन हबो ना FAC आउ D पॉइंट रे जो चार्ज होची B पॉइंट रे जो चार्ज होची ता ऊपरे फोर्स लगेबो केते FD ताले FC आउ FB FA आउ FC रो रिजल्टेंट हला FAC
आउ एफ डी ये दुईटा मिसिकी हम आम रिजल्टेंट फोर्स बुझीगला ताले एफ सी प्लस एफ डी इज इक्वाल्स टू आम कौन लिखा ना रूट ओवर एफ सी मीन्स रूट ओवर एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस एफ डी एफ ए आउ एफ सी हूँ इक्वाल कहीं ना ए चार्ज ऑल चार्ज तो इक्वाल आउ सो এই যে ফোর্স মানে এফ এ এন্ড এফ সি ই কেতে হবো না কে কিউ স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এফ ডি কেতে হবো এফ ডি হচ্ছে এই যে ডিস্টেন্সটা হচ্ছে যেতবে এইটা এই সব ডিস্টেন্স হচ্ছে এ গিভেন ইন দি কোয়েশ্চন বাট এইটা কেতে হবো না এটা হচ্ছে রুট টু এ অলরাইট তাহলে ফোর্স কেতে হবো এফ ডি ফোর্স হচ্ছে কে কিউ স্কোয়ার মিন্স এটা হচ্ছে স্মল কিউ এটা হচ্ছে স্মল কিউ তাহলে কে কিউ স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার আর হচ্ছে কেতে না রুট টু এ তাহলে রুট টু এর হোল স্কোয়ার যদি আমি করিবা তাহলে কেতে আসিব না টু এ স্কোয়ার সো এফ ডি র ভ্যালু বাহারলা নাও আমি পুট করিয়া এইটা হলা রেজল্টেন্ট ফোর্স সো রেজল্টেন্ট ফোর্স ইজ ইকুয়ালস টু হয়ে কেতে এফ এ স্কোয়ার প্লস এফ সি স্কোয়ার এফ এ আউ এফ সি হচ্ছে ইকুয়ালস সো আমি কোন লিখিপারিবা রুট ওভর টু এফ এ স্কোয়ার সো রুট টু आउ एफ ए स्क्वायर मीन्स एफ ए सो रूट टू इंटू के क्यू स्क्वायर बै ए स्क्वायर जेहेतु एफ एर भैल्यू हूँ के क्यू स्क्वायर बै ए स्क्वायर प्लस एफ डी रो भैल्यू हूँ केते ना के क्यू स्क्वायर बै टू ए स्क्वायर सो एटा हो के क्यू स्क्वायर बै ए स्क्वायर इंटू रूट टू प्लस हाफ सो के भैल्यूटा को जो पुट करवा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बै ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 रूट 2/2 सो दिस इज आवर फाइनल आंसर सो ऑप्शन C is the right answer. Option C is the right answer. जीवा next question को dielectric constant for metal. Dielectric constant for metal ये कहते हबो dielectric constant of metal पिले या को मन रखिबो dielectric constant of metal होची infinite. काहे कि ना dielectric constant K is equals to हमें जानिचु epsilon m by epsilon naught. इप्सिलॉन एम और वैल्यू एज कंपेयर टू इप्सिलॉन नॉट इज वेरी वेरी लार्ज सो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज इनफाइनाइट नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन नंबर 9 टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स केप्ट एट ए डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर if the charges are halved and the distance between them is doubled the new force acting on each charges कौन हबो charges halved हेछि आगो थिला q एबे हेजिबो कोन q/2 each charge and कौन हेजिबो distance between them ता भितर distance कौन हेजिबो ना डबल हेजिबो ताले new force कौन हबो ओके ऑप्शन ए देछि f/8 ऑप्शन बी देछि f/4 ऑप्शन सी देछि 4f और ऑप्शन डी देछि f/16 सो या केमती कौन करवा ना देख के एफ इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जेहेतु दुईटा चार्ज देछि q1 एवं q2 टू चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड टू चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड सो मैग्नीट्यूड मन करो q ताले f कौन हेजिबो ना f इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ताले f डैश पिले कौन हबो ना f डैश इज इक्वल्स टू कहिछि इफ द चार्जेस आर हाफ्ड ताहले के क्यू बाई टू रो होल स्क्वायर हेजिबो आउ डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड हेजिबो माने होची 2r रो होल स्क्वायर हेजिबो ताले पिले एटा कोन हेजिबो 2 रो होल स्क्वायर माने 4 2 रो होल स्क्वायर माने 4 माने 16 1/16 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आउ के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माने होची f ऑलराइट सो एटा हेजिबो 1/16 into f so option D is the right answer so this is the solution last question is question number 10 the electric field inside a spherical shell of uniform surface charge density is option A 0 option B constant less than 0 option C directly proportional to the distance from the center option D none of these देखो पिले according to the Gauss law आमे जानिचु E dot ds means E dot A area is equals to Q by epsilon naught so E is equals to Q by epsilon naught A now जदि एटा
गोटे स्फीयर हम ताले तार ऑल चार्जेस रिसाइड होजी आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर सो नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर सो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन हम पिले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हम बिकज क्यू जीरो जदि क्यू जीरो हम सो ई ऑल्सो जीरो हम all the charges reside on the outer surface of the cell so according to the Gauss law electric field inside the cell कौन हम ना जीरो हम ओके आज ये नेक्स्ट क्लास रे पुणी आउ 10टी MCQ करिवा थैंक यू।